चला जाएगा। Which chapter would you like to study in grammar? Tense. Would you like to study tense? Yes, sir. Yes, sir. Okay. टेंस किसको टेंस में हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट डू वी स्टडी अंडर टेंस? टेंस के अंदर हम पढ़ते क्या हैं? वी स्टडी द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन टेंस, क्रिया का रूप। Whenever we speak a sentence, we have to use verb, subject, verb, object. This is the pattern of English sentences. Whatever the language may be, we have to use verbs. Without verb, you cannot convey the meaning. So the forms of verbs are important thing in any language. Time has been divided into 3 parts. टाइम को 3 भाग में बांटा गया है ना? पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो किसी न किसी टाइम को हम इंडिकेट करते हैं। तो टाइम को इंडिकेट करने के लिए हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि वी रीड ए बुक, यहाँ रीड क्रिया का जो फॉर्म है रीड, V1 फॉर्म हम यूज करते हैं, है ना? वी शैल रीड ए बुक, यहाँ रीड के जगह पर शैल रीड का प्रयोग कर, तो फॉर्म बदल गया। वी रेड ए बुक, यहाँ भी इसका फॉर्म बदल गया। तो हम क्या कर रहे हैं? We are using the different forms of verbs, and these different forms of verbs tell us the time. Different forms of verbs हम यूज कर रहे हैं और ये different forms of verbs हमें टाइम बता रहा है, समय बता रहा है। तो टेंस क्या हुआ? टेंस is the forms of verbs which tell us time. इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। The tense denotes the form of verb which tells us time. Example: I sing a song. प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है। प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है। I sang a song. Sang a song, ये पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। ये पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। I said
क्या हुआ, क्यों हो रहा है? फोन आ रहा है। ये जो है फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है ना। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे आपसे, लिखना नहीं आपसे, बोल दीजिए ना, पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बता सकते। ठीक। अच्छा देखो, we have used different forms of the verb sing. Sing, sang, shall sing. These different forms of verbs are called tenses, and they indicate different times. Sing denotes present time, sang denotes past time, shall sing denotes future time. So we have three tenses to denote three times. Time has been divided into three parts. The tense has also been divided into three parts. Simple present tense denotes present time. Past tense denotes past time. A future tense denotes future time. Generally ऐसा होता है, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करने के लिए करते हैं, फ्यूचर टेंस का प्रयोग फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए करते हैं, पास्ट टेंस का यूज पास्ट टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम करते हैं। लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है, हम प्रेजेंट टेंस से पास्ट टाइम को भी इंडिकेट कर सकते हैं, पास्ट टाइम से हम प्रेजेंट टेंस को भी इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक स्पेशल केस में हम ऐसा करें, उस पर हम बाद में विचार करें। अभी हम इतना ही याद रखें, प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टेंस से फ्यूचर टाइम और पास्ट टेंस से पास्ट टाइम। तो प्रेजेंट सभी टेंस का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी टेंस का 3-4 पार्ट्स है ना। इस तरह से कुल 12 टेंसेज हुए। तो हमें सीखना क्या है, हमें उन्हीं का वर्ब फॉर्म सीखना है, उसके बाद उनका यूजेज सीखना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख लिया होगा तो ठीक है। अब देखो टेंस का 3 पार्ट हम करते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। Present tense, past tense, future. Yeah. Tense can be divided into 3 parts: present tense, past tense, future tense. Denotes present time. Present tense denotes present time. Past tense denotes past time. Future tense denotes future time. Present tense denotes present time. Past tense denotes past time. Future tense denotes future time. What shall we do now? We shall study the 4 parts of the present tense now.
Then we shall study the 4 parts of the past tense and then the 4 parts of future tense. In this way, we shall study 12 tenses. First of all, let us study the present tense. हम present tense का पहले स्टडी करें. Present tense. Simple. Okay. Present continuous. Present perfect. Present perfect. Present perfect continuous. Present perfect continuous. Simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Let us see simple present tense. First of all, verb form. Simple present tense का verb form. Subject plus V1 और V5. मेन फॉर्म किसी भी वर्ब का मेनली 3 फॉर्म होता है. प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. प्रेजेंट पार्ट को कहते हैं V1, पास्ट फॉर्म को कहते हैं V2, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को कहते हैं V3. राइट V1, रूट फॉर्म जितना है सब V1. राइट दूसरा V2, रोट V3, रिटन. राइट, रोट, रिटन. गो, वेंट, गोन. गो, वेंट, गो. प्ले, प्लेड, प्लेड. बाहर में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो उसको V4 कहा जाता है. ग्रामर लिखने वालों ने उसका नाम V4 कर दिया. ये तो आसान है, किसी में आईएनजी लगा देंगे. राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जंपिंग, टीचिंग, स्टडिंग, रीडिंग, सिंगिंग. और जब हम एस या एस जोड़ते हैं उसको हम V5 करते हैं. गोज, teaches, sings, writes, plays, cooks, ये सब V5 है ना. इससे के बारे में पता है ना आप लोग को? हेलो, यस सर. पता है ना? V1, यस सर. V3. तो ये V5 हमने यहाँ लिखा. इसका मतलब V5 का मतलब है V1 प्लस ES और ES. ES और ES, ES या ES इसमें हम जोड़ सकते हैं. V5 का ये मतलब. तो हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन 3 प्रकार का पर्सन होता है, आप जानते होंगे, है ना.
तो पर्सन के अनुसार हमें V1 या V5 को यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? प्रोनाउन आई और वी, I और V। सिंगुलर और प्लूरल। हाँ, आई और वी, आई वी। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में यू, प्लूरल में भी You। यू। सबको मालूम है ना? Yes। Yes, sir. इसको लिखने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. आई वी यू यू, ये सेकंड पर्सन हो गया। माने पर्सन स्पीकिंग इज फर्स्ट पर्सन, जो आदमी बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। जिससे बोला जाता है वो सेकंड पर्सन कहलाता है, यू। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है मेल के लिए ही, फीमेल के लिए सी, नॉन लिविंग थिंग के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए इट। सिंगुलर में। थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होता है पता है? He, she, it। हाँ, ये तो हुआ ही से इट सिंगुलर में। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है ही सी इट। प्लूरल में Her। His, her, they. His, her। His, her, they. नो, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। जैसे देखो, रमन, लिखना नहीं इसको, रमन, ये थर्ड, ये नाम है ना, सिंगुलर नाम है। तो जितना भी नाम है वो सभी थर्ड पर्सन। यदि वो सिंगुलर है, एक है, तो सिंगुलर नंबर होगा। रमन is doing his work, ये भी तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है। रमन एंड सौरभ। अब ये जो सब्जेक्ट हो गया वो प्लूरल हो गया, दो आदमी का, दो आदमी हो गया। आर डूइंग देयर वर्क। देखो, आपने कहा कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर ही है, नहीं, ये भी तो सिंगुलर नंबर ही है ना। दे होता है, दे का नाम सुना होगा। Yes। इसको ऐसा करो, हम ऐसे लिख देते हैं इधर बना करके। सर मेरे स्क्रीन में आपका वीडियो अटक गया। क्या हो गया? मेरे स्क्रीन में आपका वीडियो अटक गया। वीडियो सर अटक गया? मेरा में भी वीडियो अटका हुआ। तुम्हारे सर वो स्क्रीन आपका, में? सर वीडियो पॉज हो गया आपका। अच्छा, हाँ सर। वीडियो जरा वीडियो अटक गया। किसी के स्क्रीन पर वीडियो अटक गया। बच्चे की आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोल के अटक गया। वीडियो रुका है क्या? किसी के स्क्रीन पर अटक गया। नहीं नहीं, मेन अटक गया। अटक जाता है। आवाज आ गया। अब चल रहा है सर। हाँ ठीक, ओके। ऐसे इसको टेबल को लिख लीजिए। सिंगुलर नंबर, प्लूरल
number. First person, second person, थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन में आई होगा और यहाँ प्लूरल में वी होगा। सेकेंड पर्सन में यू होगा, यहाँ यू होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है ही, सी और इट, ही सी। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर इधर सबके लिए होता है दे, एस THE1। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी, प्लूरल नंबर दे। इसलिए इसको हमने इसलिए लिखा कि हम V5 का प्रयोग कहाँ करें। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो तरह का वर्ब आता है, एक V1 और एक V5। तो V1 का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, किस प्रकार के, किस पर्सन के साथ, और V5 का प्रयोग हम किस पर्सन के साथ करें। तो V5 का प्रयोग ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर टेक्स V5। ये सिर्फ V5 लेता है, he, she, it, और बाकी जितना है सब में V1 लगेगा। बात समझ में आई? अब हम Yes, sir. अब हमें सर हाँ, अब हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आई से लेते हैं, आई सिंग ए सॉन्ग। क्या लग रहा है, V1, V1 है ना, V1, V1। दूसरा इसको लेते हैं, बी सिंग ए सॉन्ग। तीसरा लेते हैं, सिंगुलर प्लूरल में सेम होता है, यू सिंग ए सॉन्ग, यू सिंग ए सॉन्ग। चौथा, ही सिंग्स, सिंग्स हो जाएगा, V5 लग जाएगा, इसमें V5 लग जाएगा। He sings a song, she sings a song, she sings a song, she sings a song। ठीक है, लेकिन they sing a song, यहाँ पर लिखते हैं, they sing a song। और it से भी लिखेंगे, it sings a song, it sings a song। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर टेक्स V5, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सी इट, या सिंगुलर नेम रहेगा तो रमन, सौरभ, विवेक, गौरी, सिंगुलर नेम सिंग्स अ सॉन्ग, विवेक सिंग्स अ सॉन्ग, माय फ्रेंड सिंग्स अ सॉन्ग। जितना भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उसी में ये V5 लगना। बाकी के साथ हम आई, वी, यू, दे सब के साथ हम V1 का प्रयोग करें, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी में जब इसका वर्ब होगा ता, ती, ते, मैं गाना गाता हूं, हम लोग गाना गाते हैं,
तुम लोग गाना गाते हो, वह गाना गाता है, वह गाना गाती है, वे लोग गाना गाते हैं, गाते। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है। इंग्लिश में V1 या V5 का, तो V5 कहाँ लगता है पता है ना? इसके साथ ये देखिए, ये टेबल में यहाँ जो है, ये है कौन? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यहाँ लिखा हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर टेक्स V5 एंड द रेस्ट टेक V1। बाकी जितना है V1 लेते हैं, आई, वी, यू, दे, सब V1 लेंगे। यू कैन टेक ए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब आप बनाइए, या लिखते भी जा सकते हो। कितना स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर तो लिखना ही पड़ेगा। इतना टाइम है कि आप लिख सकते हो, इतना टाइम तो है, फिर सबको बाद में लिखना पड़ेगा। लिखते जाइए कॉपी। अब देखिए बनाइए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ suitable forms of the verbs. Use simple present tense. Simple present tense use कर। Number students in field, यहाँ पर प्ले। अब आपको देखना है कि यहाँ प्लेज होगा या प्ले होगा। My brother in class 10, READ, read. She English fluently. Speak. Sir, I can tell. Can write. Do it. जैसे यहाँ पर क्या हो, ये प्ले वर्ब V1 प्लेज होगा। हाँ प्ले दिया हुआ वर्ब है। अब यहाँ प्लेज होगा या प्ले होगा? प्लेज होगा। प्लेज होगा यहाँ। हाँ। क्यों? स्टूडेंट्स है, ये कौन सा पर्सन में आएगा? अरे हाँ, स्टूडेंट्स कौन सा पर्सन में आएगा? थर्ड पर्सन में आएगा। तो Okay. सिंगुलर, हाँ सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल। प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में V5 लगेगा कि V1 लगेगा? सर V1। हाँ तो फिर प्ले होगा, यहाँ पर प्ले होगा। दूसरा का रीड्स। यदि यहाँ पर स्टूडेंट रहता सिर्फ तो यहाँ प्लेज होगा। ठीक है सर। माय ब्रदर रीड्स इन क्लास 10th। हाँ क्या होगा? यस लगेगा? हाँ Yes, सर। sir. हाँ रीड्स हो जाएगा। तीसरा का क्योंकि शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। हाँ स्पीक्स, ये थर्ड, सभी थर्ड पर्सन है, लेकिन ये थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए V1 है, और ये दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए Plural. हाँ थर्ड पर्सन ये प्लूरल है, और ये दोनों है 2 और 3 में जो है सी और माई ब्रदर सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में V5 लगता है। और देखिए
Raman and Saurabh together क्या होगा? Works together. Works. Works. वर्क वर्क या वर्क्स? Works. वर्क मैथ मैथ Plural होगा सर. Works. सर वर्क सर वर्क हाँ ठीक. Raman and Saurabh ये प्लूरल हो गया ना? हाँ सर. यस सर प्लूरल थर्ड पर्सन ये है, थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया. तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में V1 लगता है. वर्क नॉट वर्क्स. यदि अकेले रहता जैसे रमन रहता, रमन तो यहाँ पर वर्क्स होता. Works hard. अच्छा. यहाँ पर वर्क्स होता. ये दो हो गया. ऐसा देख, ये क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये बॉय Singular. Singular. सिंगुलर और ये क्या हो गया? Plural. प्लूरल. प्लूरल और ये क्या है? नाउन है. नाउन है ना? Yes. हाँ, तो नाउन जो है, सुनो, नाउन अपने रूट फॉर्म में, एक बात और बता, नाउन अपने रूट फॉर्म में सिंगुलर होता है. जब हमें उसका प्लूरल बनाना होता है तो यस या ये जोड़ते हैं. जैसे बेंच का बनाना है तो बेंची, ऐसे करें. लेकिन जितना भी वर्ब है V1 फॉर्म में, अपने रूट फॉर्म में, मूल फॉर्म में, रीड, सिंग, डांस, जानते हो क्या है? सभी प्लूरल है. उल्टा, नाउन का उल्टा, सभी प्लूरल है. इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस या इट जोड़ते हैं. तो ये नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब. तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ये एस लगाने से सिंगुलर हो जाता है. उल्टा होता है वर्ब. ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब डाल दिए. यही नियम है. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. सिर्फ आई जो है इसका एक्सेप्शन है. आई ये सिंगुलर है फिर भी ये प्लूरल वर्ब लेता है. यानी ये रूट फॉर्म में रहता है. देख V1, आई रीड ए बुक. कुछ बात समझ में आई कि वर्ब जो है हमेशा प्लूरल रहता है अपने रूट फॉर्म. उसको हम एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं. ठीक नाउन का उल्टा. इसीलिए सिंगुलर के साथ ये सिंगुलर बनाने, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाया क्योंकि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है. और यहाँ ये दो मिलकर के प्लूरल, इसलिए प्लूरल वर्ब दिया गया. सी सिंगुलर है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस लगाए. माई ब्रदर सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाए. इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब. सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल. अब स्टूडेंट्स है ये प्लूरल है, हमने प्लूरल छोड़ दिया है. प्ले जो है V1 है, V1 बिल्कुल प्लूरल होता है. नाउन का ठीक उल्टा. ये तो देखा कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 लगाते हैं, है ना. अब इसका नेगेटिव बनाएंगे. हम जैसे इसको लीजिए, स्टूडेंट्स प्ले इन द फील्ड. क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव कैसे बनता है? स्टूडेंट्स प्ले. डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं तो V1 वाले को डू नॉट लिखे. डू नॉट प्ले इन द फील्ड हाँ इन द फील्ड. ये डू नॉट प्ले हो गया. ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब है, बाहर से लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए. स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले इन द फील्ड. ये दूसरा. फिर है माय ब्रदर. माय ब्रदर डज
does not read in यस जब लगा रहेगा ना तो डज नॉट और जब डज लग जाएगा तो यस हट जाएगा। नहीं, यहां पर यस नहीं लगाना। माई ब्रदर डज नॉट रीड ए In the अब she speaks English fluently. She does not क्या दें speak या speaks speak. speak डज लगने पर आप s को हटा दें, रिमूव कर दें। she does not speak English she does not speak English fluently. She does not speak English fluently. ठीक है। Fourth का Raman and Saurabh Do not Do not work together. do not work together. Do not work together. Raman and Saurabh do not work together. Raman and Saurabh do not work together. Raman works hard. Raman does not work hard. Raman does not works नहीं होगा, वर्क हो जाएगा। Raman does not work hard. I read a book. I do not read a book. नेगेटिव बन गया सब। यानी नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव I do not read a book. Our students do not play in the field. My brother does not read a book. She does not speak English fluently. Raman and Saurabh do not work together. Raman does not work hard. I do not read a book. तो सिंपल प्रेजेंस का नेगेटिव अपने बनाया। अब कुछ और सेंटेंस देते हैं दो तीन, उसका इंट्रोगेटिव बनाइए इस तरह से। Simple phrase. She helps me. इसका हो जाएगा डू डज से शुरू करेंगे। डज शी हेल्प मी? ऐसे Me. डज शी हेल्प मी? वह मेरी मदद करती, वह मेरी मदद करती है। क्या वह मेरी मदद करती है? द टीचर teaches us.
gardener waters the plant. Gardener waters the plant. I take breakfast. I take breakfast. क्या होगा इसका? The teacher teaches us. बनाइए कोई. Do the teacher taught us? Do या does? Does. 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 थर्ड पर्सन है ना? हाँ, yes लगा हुआ है. Does. Does the teacher teach हो जाएगा. यह हट जाएगा. Teachers. और यहाँ क्वेश्चन मार्क. Does the teacher teach us? The gardener waters the plant. Does the gardener water the plant? Does the gardener water? Water मतलब पानी देना, पटाना. water the plant. हाँ, ये हट जाएगा. Plants कर दो, बहुत सारा पौधा है. plants, plants. Does the gardener water the plants? I take breakfast. क्या होगा? Do हाँ, right. Do I take take breakfast? Do it take breakfast. breakfast? Do I take breakfast? Does he help me? Does the teacher teach us? क्या टीचर हम लोगों को पढ़ाते हैं? Does the gardener water the plants? क्या गार्डनर पौधे को पानी देता है? Do I take breakfast? क्या मैं नाश्ता करता हूं? Do I take breakfast? इस तरह से हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम डू और डज का प्रयोग करते हैं. डू और डज जो है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो तरह का वर्ब होता है. द हेल्पिंग वर्ब helps the main verb to form different tenses and voices. Different tense and voice बनाने में helping verb main verb की मदद करता है. There are some helping verbs which helps the main verb to express different types of ideas. तरह तरह के आइडियाज को व्यक्त करने के लिए भी मेन वर्ब के साथ मिल जाता है हेल्पिंग वर्ब. जैसे कैन एक है, तो सब बाद में सीखेंगे हम. आई कैन राइट ए लेटर. राइट के साथ कैन मिल गया और ये इस आइडिया को व्यक्त कर रहा है कि लेटर लिखने की मुझ में क्षमता है. तो हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं था. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं. तो हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू और डज तो हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करते हैं. डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए. ठीक है. एक बात और जानो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस
tense is used to express habitual action, routine work, permanent activity, scientific truth, habitual action, routine work, permanent activity, scientific truth. ये सब जो है व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन समझते हो, जो काम आदतन होता है, आदत के अनुसार, या जो काम रूटीन के अनुसार होता है, जो काम रिपीटेडली होता है, अक्सर होता है, प्राय होता है, रोज रोज होता है या एक इंटरवल पर होता है, या जो काम, जो एक्शन साइंटिफिक ट्रूथ को व्यक्त करता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे एक्शन, ऐसे क्रिया को दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे वह रोज स्कूल जाता है, तो एक रूटीन वर्क हुआ कि नहीं? रोज रोज स्कूल जाना एक रूटीन वर्क है। He takes breakfast at 8 AM. वह 8 बजे नाश्ता करता है, ये भी एक रूटीन है। The sun sets in the west. ये एक ज्योग्राफिकल ट्रूथ। सूर्य पश्चिम में डूबता है। The sun rises in the east. सूर्य पूरब में उगता है। तो ये परमानेंट नेचर का काम है, परमानेंट प्रकृति का काम है, ऐसा होता है, रिपीटेडली होता है। हिंदी में ताती करके बोलते हैं, इंग्लिश में V1 और V5 का प्रयोग करके इसके भार को रखा जाता है। हैबिट वाली क्रियाएं, रूटीन वाली क्रियाएं, परमानेंट टाइप का जो एक्टिविटी है, रिपीटेड एक्शन है, अक्सर जो काम होता है, बार बार होता है, साइंटिफिक ट्रूथ है, ज्योग्राफिकल ट्रूथ है, इस तरह के एक्शन को हम इसमें रखते हैं। अब दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में आपने समझा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपने उसका वर्ब फॉर्म देखा, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में आपने उसका यूजेस देखा। अब आइए सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उसका अलग वर्ब फॉर्म है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है सब्जेक्ट के बाद, और उसका मेन वर्ब को हम आईएनजी लगा के रखते हैं, यानी V4 यूज करते हैं। और ये हमें बताता है कि काम चल रहा है, काम चल रहा है, बोलने के समय काम जारी है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा आई एम रीडिंग, एनीबडी कैन सी दैट आई एम सिटिंग विथ माई बुक ओपन बिफोर मी। आप देख सकते हैं, बुक खोल के मैं बैठा हुआ हूँ, आप मुझे देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए,
V4. She is reading. ईच का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, आई के साथ एम लगता है. We are singing. Singing. I am dancing. देखिए हेल्पिंग वर्ब ईजे मार्क लगा गया है, आर प्लूरल है, ई सिंगुलर है और आई के साथ एम लगता है. काम चल रहा है. He is reading, we are singing, I am dancing. इसका नेगेटिव बनाना भी बहुत आसान है, सिर्फ नॉट लगा देंगे, है ना, सिर्फ नॉट लगा देंगे. He is not reading. We are not dancing. We are not singing it. I am not dancing. इंट्रोगेटिव बनाना भी बहुत आसान है. इज आर को आगे कर दीजिए. इज ही नॉट, इज ही डांसिंग. इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ बना सकते हैं. इज ही नॉट डांसिंग, आर वी सिंगिंग, क्या हम लोग गा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क. आर वी सिंगिंग, आर वी सिंगिंग, एम आई डांसिंग, ये क्वेश्चन बन गया. और नेगेटिव तो देख ही रहे. ही इज नॉट रीडिंग, वी आर नॉट सिंगिंग, आई एम नॉट डांसिंग. आई एम नॉट डांसिंग, वी आर नॉट सिंगिंग, ही इज नॉट रीडिंग. तो इसमें और सिंपल प्रेजेंट में अंतर क्या है? सिंपल प्रेजेंट ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो अस्थाई परमानेंट नेचर का, रूटीन के अनुसार होता है, हैबिट के अनुसार होता है, जो साइंटिफिक या ज्योग्राफिकल ट्रूथ होता है, अस्थाई नेचर का काम है. और ये जो है टेम्पररी, अस्थाई नेचर का काम नहीं. It denotes an action which is going on at the time of speaking. इसको लिख लीजिए. Present continuous tense denotes an action which is going on माने चल रहा है, going on at the time of speaking. Present continuous, NUOUS, denotes an action which is going on at the time of speaking. ये ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो बोलने के समय जारी रहता है.
ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो बोलने के समय जारी रहे। ठीक है, अब कुछ होमवर्क लीजिए। 2 टेंस हमने बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है कि काम चल रहा है, जारी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में काम जारी नहीं है, वो अस्थायी नेचर का काम, वो होता है रिपीटेडली, रूटीन के अनुसार। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, में अंतर है। मैं पढ़ता हूँ मतलब आई एम ए स्टूडेंट, इसका मतलब नहीं है कि किताब खोल के बैठा हूँ, लेकिन आई एम रीडिंग का मतलब है कि मैं किताब खोल के बैठा हूँ, काम हो रहा है। सर, यस, आप ऊपर में नेवर में आर लगाना भूल गए। कहाँ? सर ऊपर, सर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा अच्छा, हाँ, सी नेवर। गंगा, EMERGE, इमर्ज, माने निकलना। बॉय,
नहीं चल रहा है, चल रहा है। नीचे दिख रहा हूँ, दिख रहा है। कम गया। मतलब 10th के बच्चे भी आ जाएंगे सर। व्यवस्था टच कर दिया, खन खन आवाज जाता है, आवाज ओवर करें, ओके कर लिख लिया। स्क्रीनशॉट दे दो बाद में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले।